let us see now first order high pass filter. So what do you expect? RNC. In RNC, where should I connect RNC? Non-inverting. Non-inverting. Very good. And in the inverting one, what should we connect? R and RF. Very good, very good. In order to set the gain, that is for gain purpose, or you can say passband gain, to be very specific. Correct? So as she said, I'll connect here. Let's say this is what I'm connecting. Here I am connecting R1 and RF. Okay. This should be grounded. And now how should I connect here? C पहले चाहिए कि R पहले चाहिए? पहले C. पहले C. ना? इसके पहले कैसे करते थे? R पहले था लो पास फिल्टर. V. Okay, and here I'll connect a capacitor followed by the resistor, which is grounded. So let's name this R and C. And what will be the reactance at this place? C में reactance कितना होगा? XC. XC और polar form में XC by J. ठीक है ना? XC by J याद रखो. So now let us analyze that. As expected, we will have the as expected, the frequency response will be like this. If I draw like that, I'll get the frequency response somewhat. Here it will be decreasing. Okay, like this it will go on decreasing. So if I see the maximum gain is this one. Here, this represents my gain, and if this represents my frequency. Okay, so similar to this, I'll take a 0.707 times of this one. Wherever it cuts, I'll draw a projection at the frequency, and this will give me the cutoff frequency. So in the high pass filter, we say it is a lower cutoff frequency, and we name it. Now, first part will be stop band or pass band? Stop band. Stop band. Stop band. This is what this part is we are rejecting. We don't want this. Okay, we want high frequencies to be passed. So which is being passed is named as pass band. So that you should remember. Maybe you'll get confused in MCQ like that thing. So make it a clear idea. Okay. Similarly, here specifically I am writing plus, or if it is not written, it means only plus, as it is a rising one. The roll-off rate is increasing as the frequency increases. Whereas in the low pass filter, the roll-off rate decreases. So that is a negative one. So that you should keep in mind. And afterward, the gain remains constant. Now we'll analyze this one. This circuit will analyze. How do we analyze? How we can go for getting the output voltage? Ultimately, if we can get output voltage, we can see how the output responds to the variation in input with the variation in frequency. That is what is our objective. So how should we get a relation for output voltage in terms of input voltage? And ultimately, input is a function of frequency. Okay. So how can we get it? See, such approach should be there from your side. सबसे पहले देखना op amp किस configuration में, in which configuration it is, inverting or non-inverting? Non-inverting. तो सबसे पहली बात, non-inverting हमको gain का फार्मूला या आउटपुट का वोल्टेज निकाल सकते हैं. What is the gain for this one? Non-inverting plus RF upon R1. R1 करेक्ट है, लेकिन एक उसमें थोड़ा सा लोचा है. कैसा? 1 plus RF upon R1 टाइम्स नॉन इन्वर्टिंग पे जो वोल्टेज होता है ना, वो होता है, ना कि यहाँ पे होता है. सो अल्टीमेटली हमको क्या पता करना पड़ेगा कि V1 कितना है, फिर उसको वो फार्मूला लगा सकते हैं. समझे? यस सर. बस ये नॉन इन्वर्टिंग के वक्त ये एहतियात रख दी है ना, तो आई कैन अश्योर यू कैन एनालाइज एनी ऑप एम्प, कितना भी गंभीर, कितना भी अलग कॉम्प्लेक्स उसमें सर्किटरी लगे हो, क्योंकि आपने रजिस्टर लगा लिया, डायोड लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया, ये तीनों चारों कॉम्बिनेशन हो गया, अब कुछ बचता ही नहीं है. और केसीएल और केवीएल के सिवा कुछ नहीं है एलआईसी में. ठीक है ना?
और रजिस्टर डिवाइडर नेटवर्क है, कुछ है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है. So how can we get the output voltage? So that will be in terms of in V1 voltage. So V1 we need to know what is the voltage V1. V1 is a voltage across. आपके लिए मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये V, ये कैपेसिटर, ये रजिस्टर, और ये वापस ग्राउंड, ये रजिस्टर, और यहाँ पे मैं V1 लेना चाह रहा हूँ इस पॉइंट पे. और ये हमेशा V1 जो लेते हैं हम किसके अक्रॉस लेते हैं या किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. ग्राउंड. अब तो फिर किसके अक्रॉस है? कैपेसिटर के रजिस्टर? रजिस्टर. हाँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. जब भी कोई ऐसा पॉइंट आता है, ये V1 इट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये प्लस VCC इट इज विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड, माइनस VE इट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, VO वोल्टेज इट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. समझे? और ये दोनों पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर कॉमन, दैट्स व्हाई दिस इज एट ग्राउंड पोटेंशियल. ग्राउंड इज सर्टेन रेफरेंस, इट इज नॉट एनीथिंग. आप यहाँ हो सकता है 2 वोल्ट है, लेकिन अगर यहाँ 5 है तो 5 माइनस 2 3 होता है, तो ये अपने आप हम रेफरेंस इसको 0 मान सकते हैं. इट इज लाइक दैट कॉन्सेप्ट. ओके, देन इट इज क्लियर दैट V1 इज अ वोल्टेज अक्रॉस R. सो हाउ शुड वी गेट इट नाउ? 2 रजिस्टर अगर सीरीज में रहते हैं या 2 कंपोनेंट सीरीज में रहते हैं तो उसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालते हैं? किसके अक्रॉस है? R. तो कैसे निकालते हैं? R upon R plus C. R अपॉन, बहुत अच्छी कोशिश है, लेकिन R प्लस C में का ओहमिक कंपोनेंट यानी कि रिएक्टिव कंपोनेंट लेना पड़ता है. C क्या है? माइक्रोफेराड में. हाँ, R प्लस C नहीं हो सकता ना, ओम प्लस फेराड नहीं हो सकता. तो ओहमिक कंपोनेंट क्या होता है ऐसे सोचने का, यानी कि उसका रिएक्टेंस, चाहे वो इंडक्टर रहो या कैपेसिटर, उसका रिएक्टेंस ओम में रहता है. 3 चीज की क्वांटिटी का यूनिट ओम है. कौन सा बोलो तो? रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इंपीडेंस. इंपीडेंस क्या है? ये रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट है. अगर R है और उसमें C आ गया, या R है या उसमें L आ गया, तो इनका ओवरऑल जो रोल होता है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज दिया है और जो करंट फ्लो हो रहा है उसका अगर हमने निकाला जाए तो वो होता है Z, यानी इंपीडेंस. सेम वे ये R है, ये XL है, ये R है, ये XC है, तो इसका भी V अपॉन I करेंगे तो इसका Z निकलेगा. ठीक है, ये सपोज Z1, ये Z2. इवन अगर यह रजिस्टर है और यह इंडक्टर है और यह कैपेसिटर है, तो भी इसका XL और इसका XC मिलकर जो बनेगा X, तो ये R प्लस JX और इनका मैग्नीट्यूड जो निकलेगा वो V अपॉन I, यानी कि नया Z3. कुछ भी रहे, ऐसा रजिस्टर है, यहाँ पे इंडक्टर है, यहाँ पे कैपेसिटर, कितने भी कंपोनेंट आ जाए, कैसे भी आ जाए, सो ये अल्टीमेटली R प्लस JX और इसका इक्विवेलेंटली Z हो जाएगा, जो कि उसका मैग्नीट्यूड होगा. मैग्नीट्यूड यानी Z होगा, जो यहाँ का वोल्टेज अपॉन करंट. अब आया समझ में? तो हमारे ओम क्या क्या होते हैं? रजिस्टर इन ओम, X इन ओम, मतलब X में दोनों आ गया, XC रहे या XL रहे, और Z, ये सब इसके यूनिट ओम. तो अब जैसे आपने बात की उसी तरीके से इसका क्या रहेगा फिर? XC बाय J इनटू टोटल वोल्टेज, दैट इज वीन. ये नहीं भूलना, इस वीन का ये फ्रैक्शन है. इस वीन का ये वीन जो है ना, ये टोटल सर्किट में दिया है, तो कुछ XC के अक्रॉस ड्रॉप होगा, कुछ R के अक्रॉस ड्रॉप होगा. तो R के अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं. सो इट विल बी अ फ्रैक्शन ऑफ द इनपुट वोल्टेज. व्हाट फ्रैक्शन? इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ R एंड C. समझे? तो R अपॉन R प्लस XC बाय J. नाउ विल एनालाइज दिस वन और विल गो फॉर दिस वन. XC इज इक्वल टू कितना होता है? 1 अपॉन ओमेगा C या 1 अपॉन 2 पाई FC. ठीक है, याद रखो, और यही वैल्यू यहाँ रखना है. So V1 ultimately I am getting here R upon, पहले R plus इस फॉर्म में लिखता हूँ J ओमेगा C, R upon R plus J ओमेगा C into V, ये नहीं भूलना है. ठीक है, so now I am cross multiplying it, putting the values. So what should I get? अब देखेंगे आप यहाँ पे नीचे एक स्टेप बढ़ा देता हूँ आपके लिए. चलो, J ओमेगा R C plus 1 upon J ओमेगा C, ये इज इट ओके? यस सर. अब इसका ही क्या होगा? ये ऊपर चले जाएगा ना, मुझे क्या मिलेगा? J ओमेगा RC प्लस 1 प्लस J ओमेगा RC इंटू V. इज इट ओके? यस सर. तो अब आउटपुट वोल्टेज हम इजीली निकाल सकते हैं. आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? VO इज इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1 टाइम्स V1. विल पुट द वैल्यू 1 प्लस RF अपॉन R1 टाइम्स, ये जो वैल्यू आई थी यही लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे रख रहा हूँ. ठीक है,
सो ये आ जाएगा जे ओमेगा आर सी इंटू वी। इसी को मैं लिख सकता हूँ जे ओमेगा यानी 2 पाई एफ आर सी 1 प्लस जे 2 पाई एफ आर सी इंटू वी। अब मेरा गेन जो निकालना है ओवरऑल दैट आई कैन कैलकुलेट। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। सो अब यहाँ पे मैं इसको इस फॉर्म में लिखने वाला हूँ। इसमें अच्छा एक चीज छूट गया ना, 1 प्लस आर एफ अपन आर वन। तो यहाँ लिख रहा हूँ ये 1 प्लस आर एफ अपन आर वन को मैं लिख लिया ए एफ, ठीक है। और ये जे जैसा का वैसा रखा। एफ जो है हमको इनपुट फ्रीक्वेंसी है, डिवाइडेड बाय एफ एल लिख दिया। यहाँ भी वैसे ही किया 1 प्लस जे एफ बाई एफ एल। तो एफ एल की वैल्यू क्या होगी बताओ, वेयर ए एफ इक्वल्स टू 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन। ये क्या है, गेन। पास बैंड गेन बोलो, ज्यादा अच्छा लगेगा। गेन हर समय नहीं है ना, वो इस बार क्या है, गेन कांस्टेंट नहीं है, इट इज चेंजिंग विद द फ्रीक्वेंसी। तो ये फिल्टर की यही कैरेक्टरिस्टिक है, ये पास बैंड का गेन है। और एफ क्या है तो नहीं भूलना चाहिए, बोलो फ्रीक्वेंसी किसका, और पास बैंड नहीं, इनपुट जो दे रहे हैं ना उसकी फ्रीक्वेंसी। यानी आप बोल रहे हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी, अगर उसको इनपुट है तो माइक्रोफोन से, मैं बोल रहा हूं तो मेरी फ्रीक्वेंसी, बच्ची बोल रही तो बच्ची की फ्रीक्वेंसी, लाइक दैट वन। सो इनपुट सिग्नल हम देते हैं फंक्शन जनरेटर, लेकिन एक्चुअल लाइफ में वो ऐसा नहीं होता ना। फंक्शन जनरेटर लेकर चलते क्या, वो कोई तो भी इनपुट रहेगा, कहीं से तो भी आने वाला रहेगा, किसी सेंसर का इनपुट रहेगा, कुछ रहेगा। माइक्रोफोन से मेरी आवाज रह सकती है इस टाइप से। सो एफ इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल एंड एफ एल इक्वल्स टू कितना बताया नहीं आपने, सेम वैल्यू जो पहले आया था वही है, 1/2 πRC। अब यहाँ पे इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, लेकिन हाई पास फिल्टर है तो इसको स्पेसिफिक नेम दे देंगे, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फार्मूले इजीली याद रहने वाले हैं, 2 πRC 1/2 πRC। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज गेन, मतलब वीओ बाई वीन का मैं मैग्नीट्यूड निकल। अब बताओ पर अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा बहुत समझ में आएगा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, थोड़ा याद दिलाओ। अपन ने क्या बोला था कि a प्लस जे बी होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा बोलो है ना, बराबर है, करेक्ट है ना। अच्छा a माइनस जे बी रहा तो क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस जे बी चाहिए था, तो यहाँ का टर्म माइनस बी हो गया, तो माइनस बी का ले लो स्क्वायर, ये एज गुड एज सेम हो जाएगा। सो मैग्नीट्यूड के वक्त प्लस या माइनस सेम ही आता है। हाँ, लेकिन फेज शिफ्ट में चेंज आता है। इसका फेज शिफ्ट क्या आएगा, टेन इनवर्स ऑफ बी बाई ए। इसका फेज शिफ्ट क्या आएगा, टेन इनवर्स ऑफ माइनस बी बाई ए। इसलिए दोनों में कुछ ना कुछ तो असमानता रहेगी ना। तो मैग्नीट्यूड इज सेम और फेज शिफ्ट बिल्कुल अलग, निगेटिव 30 डिग्री और -30 डिग्री, देयर इज अ डिफरेंस। व्हाट माय पॉइंट, यानी ये कैसे दिखेगा अगर आपको समझना है तो मैं यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ दी। अगर a प्लस जे बी ये है, ये a है, ये इमेजिनरी में ये b है, तो ये क्वांटिटी हो गई। इसका ये जो है, ये लेंथ जो है ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये जो एंगल है ये थीटा हो गया। लेकिन ये a माइनस जी बी होगा तो ये माइनस जे बी इधर आ जाएगा, ये j और ये माइनस जे बी। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इस तरीके से। इसकी जो डिस्टेंस है ये इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन इसका फेज शिफ्ट देखो, इसकी और इसकी क्वांटिटी सेम है मैग्नीट्यूड में, लेकिन फेज शिफ्ट इज माइनस थीटा। आया ध्यान में। ये फर्क ऐसा कब आता है आपके ध्यान में, अगर आपको रियलिस्टिक चीज में देखना है तो ऐसा समझ लो कि R प्लस, अगर R रजिस्टर इंडक्टर में है तो R प्लस जे एक्सएल आएगा, और रजिस्टर कैपेसिटर के साथ है R प्लस एक्सी बाई जे, यानी कि R माइनस जे एक्सी। अपने आप आ गया निगेटिव। अब समझ में आया रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर कैसे अलग बने, हाँ, अपने अपोजिट बिहेव करते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर। ये सब चीजें ना या तो इलेक्ट्रिकल में कवर होना चाहिए था आपके डिटेल में, शायद हुआ होगा तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, या थोड़ा बहुत मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट मैथ्स में होना चाहिए कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग बहुत नजरअंदाज करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इट्स वेरी यूजफुल। अगर आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे ना तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। आप जब कंट्रोल सिस्टम आएगा नेक्स्ट ईयर में तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। इन केस आपको कॉम्प्लेक्स का कुछ भी नहीं समझ में आया, ये थोड़ा बहुत मैं जो बता रहा हूँ, तो कभी भी मुझे फिर से टोक देना, उसको मैं इजीली मैथमेटिकल वे से आपको फिर से समझा दूंगा। बट नाउ लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन टू दिस। तो अगर मुझे ये बताओ a प्लस जे बी है और c प्लस जे डी है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। सपोज इसको नाम दे दिया मैंने r का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ। तो बता चुका हो, फिर भी बताना चाहिए आपने।
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में कॉम्प्लेक्स नंबर है, बस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर? अगर फेज शिफ्ट कैसे निकालते हैं, अगर इसका एंगल निकालते हैं, फेज शिफ्ट कैसे निकालते हैं? न्यूमरेटर का फेज शिफ्ट माइनस डिनोमिनेटर का फेज शिफ्ट, टेन इनवर्स ऑफ बी बाय माइनस टेन इनवर्स ऑफ डी बाय सी। अब सब कुछ रख दिया आपके सामने, अब इसका बताओ मुझे, ये क्वांटिटी का मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड। एफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा? एफ ही होगा, है ना, क्योंकि जे टर्म इसके साथ में नहीं है, 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन प्योर रजिस्टर है। अब इसका बताओ जे एफ बाई एफ एल का क्या होगा? तो व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर a प्लस जे बी में एक भी टर्म रियल या इमेजिनरी अगर जीरो रहे तो उसका मैग्नीट्यूड दूसरा वाला टर्म आता है। क्यों? क्योंकि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इसको भी जीरो किया तो रूट बी स्क्वायर बचेगा, यानी बी आ जाएगा। रूट ए स्क्वायर भी किया तो ए बचेगा, तो एक क्वांटिटी आएगी। इसी तरीके से जे एफ बाई एफ एल का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? एफ बाई एफ एल ओनली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीरो प्लस है, ऐसे समझ के चलो, जीरो प्लस जे जेड रहा तो जीरो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि जेड स्क्वायर अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर, यानी जेड आ जाएगा। तो इज इट क्लियर? आई सपोज इट इज क्लियर। यस सर। तो इस हिसाब से ऊपर न्यूमरेटर का तो आ गया एफ बाई एफ एल। अब डिनोमिनेटर का बताओ मैग्नीट्यूड। ये डिनोमिनेटर में क्या है? 1 प्लस जे टाइम समथिंग, तो इसका क्या आएगा मैग्नीट्यूड? 1 प्लस एफ बाय एफ एल। हाँ, पर स्क्वायर बोलो, अंडर रूट स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर बोलो, वो कब भूल जाओगे तुम? पहले तो बात स्क्वायर रूट लगाना, फिर ए स्क्वायर, ए यानी यहाँ पे 1 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस, फिर जे के साथ जो बी लगा है उसका स्क्वायर, यानी एफ बाई एफ एल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज ए मैग्नीट्यूड। कितना आया? फिर से एक बार लिखता हूं मैं इसको, ए एफ जैसे के वैसे, एफ बाई एफ एल जैसे के वैसे, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एफ बाई एफ एल स्क्वायर रूट। लो पास फिल्टर में क्या होता था? सिर्फ ए एफ अपॉन 1 प्लस एफ बाई एफ एच होल स्क्वायर, ऐसा आया था। ये वाला न्यूमरेटर में क्वांटिटी नहीं आया था, पर यहाँ आया है, इतना याद रखना है हमको। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। हाँ, तो आप यहाँ पे भी सेम केस ऑब्जर्व करेंगे ना, दैट यू शुड स्टडी केस 1 व्हेन f इज लेस देन fl, केस 2 f इक्वल्स टू fl, और केस 3 f ग्रेटर देन fl। सो हियर f बाय fl में क्या ऑब्जर्व करेंगे आप? दैट द vo बाई vin इज डिक्रीजिंग। हाउ? लेट अस सी। अगर f इज लेस देन fl तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा ना, लेस देन 1 हो जाएंगे ये क्वांटिटी। यस सर। ये भी लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 का एक स्क्वायर, कोई तो भी क्वांटिटी आएगी जो 1 प्लस समथिंग, तो 1 प्लस ऐड होगा, और 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर रूट भी समथिंग आएगा जो कि इस न्यूमरेटर को और डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये क्वांटिटी घट रही है, ये क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है। सो दैट इज व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग। व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग? इन द लोअर फ्रीक्वेंसी the gain is very small. As the gain increases, frequency increases, this quantity is increasing, so it is adding, so it is divided by a less quantity, we can say. तो इस तरीके से करते जा रहा है। अब एक समय के बाद वो फ्लैट होता है, ठीक है। लेकिन एक f बाई एफ एल, f इक्वल टू एफ एल में क्या होगा? क्वांटिटी बताओ भैया। f इक्वल टू एफ एल, देखो ऊपर में तो f अपॉन एफ एल 1 हो गया, यानी af बचा, नीचे क्या बचेगा? स्क्वायर रूट ऑफ कितना बचा? तो AF बाय रूट 2, दैट इज 0.707 टाइम्स AF। तो यही डेफिनेशन होती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की। व्हेन वी गेट 70.7% ऑफ AF और A1 बाय रूट 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम गेन, वी से इट इज अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इट डिसाइड्स कि इसके अबव और इसको बिलो वो चीज क्या हो रहा है। अब F ग्रेटर देन FL, जब F ग्रेटर देन FL है तो ये क्वांटिटी मोर देन 1 आएंगी, सिमिलरली ये मोर देन 1 आएंगी, 1 प्लस समथिंग उसका स्क्वायर आएगा, ये क्वांटिटी, या 1 के हिसाब से एज कंपेयर टू 1, अगर f बाई एफ एल बहुत ज्यादा हो गया तो आई कैन अप्रोक्सीमेट कि 1 प्लस एफ बाई एफ एल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओनली f बाई एफ एल का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आई विल गेट अप्रोक्सीमेटली AF f बाई एफ एल, और यहाँ पे
ये 1 के कंपैरिजन में मैं F/FL इतना बड़ा हो रहा है, मैं फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ा रहा हूँ कि 1 के कंपैरिजन में कुछ नहीं है, तो ये अल्टीमेटली F/FL का स्क्वायर रूट F/FL ही आएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये मुझे फ्लैट पास बैंड गेन मिलेगा. So when the frequencies are higher, we get a AF as a pass band. I hope it is Yes, clear. sir. Yes, sir. So we have like a low pass filter, we are witnessing three cases: when the frequency input frequency is less than cutoff frequency, when the frequency is equal to cutoff frequency, and when the frequency is quite higher than or increasing and it is greater than cutoff frequency. So we have observed in the high pass filter, when the frequency is less than cutoff frequency, the gain reduces. At F equal to FL, gain becomes 70.7% or 0.707 times of maximum gain or pass band gain. In last case, when the F is more than FL, approximately the gain is becoming constant, and that is equal to pass band gain. I hope this completes my first order high pass filter. Is it okay? Yes, sir. So let us see now a second order high pass filter. Okay, second order. So as usual, what we are supposed to get it here, we'll connect here a resistor. So it will be our R1, this will be our RF, this is grounded, and now I am connecting here capacitor, then resistor, then capacitor, and here again resistor. As usual, the last resistor we ground it, and this we give it as a feedback. Here we'll give the input. बोथ वे से दिखा रहा हूँ, कभी सिग्नल दिखा रहे, कभी सिर्फ Vin लिख दिया. So this will be our C2 R2 C3 R3 in order to differentiate with the R1. ठीक है, इसके लिए ये ऐसे बनाया मैंने. Then you should draw a frequency response. How's the frequency response? So if this represents my AF frequency, I'll take 0.707 times, that is AF by root 2. So that will decide its cutoff frequency. This is a stop band, this is pass band. Okay, just tell me, if I want to design a first order high pass filter for, let's say, cutoff frequency of 500 hertz, कैसे निकालोगे? And with a pass band gain of 3. What I said? Cutoff frequency is 500 hertz and pass band gain is 3. Bolo, I want to design a high pass filter with cutoff frequency 500 hertz and pass band gain equal to 3. How to design a high pass filter with this frequency and with this pass band? Yes. What is pass band gain? 1 plus RF upon R1. बिल्कुल, that is equal to 3 रखे तो क्या आएगा? 1 प्लस कितना ऐड करेंगे तो 3 बनेगा? 2. 1 plus 2, 3. तो इसका मतलब RF upon R1 कितना आ गया? 2 upon 1. हाँ, यानी 2. RF upon R1 2 आ गया. If I put 1 plus RF upon R1 equal to 3, I get RF upon R1 equal to 2. 3 minus 1, 2. So I get RF equals to 2 times R1. तो अब डिजाइन कैसे करेंगे इसको? RF equal to 2 R1. Choose any value of R1 and then you'll get the value of RF. या RF चूज करो और R1 ले लो. कितना वैल्यू लेंगे बताओ? Remember, we should not take less than 1 kilo. At least 1 kilo, and it can be kilo ohm or it can be more than that. So you can take it. 2.2 ले सकते हैं, 1K ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है? Is it okay? If I choose, हाँ, fix एकदम लेना है, I can say R1 equal to 1K implies RF equals to 2K. ओके, अब क्या निकालना है? R और C की वैल्यू डिसाइड करती है कि कट ऑफ कितना रहेगा. क्या है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फार्मूला? 1/2 pi RC. ओके, और ये कितना चाहिए हमको? 500. तो अब सोच लो कैसे निकालना है. 1/2 pi into 500, यानी कि 1/1000 pi. ये वैल्यू आपको RC की वैल्यू दे रहा है. तो चूज पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ C and then you can calculate. If you choose, assume P equal to something, you'll get R equal to, and you'll be able to design it. Only thing is, it should be in the feasible value होनी चाहिए. ऐसी नहीं हो कि 10 ohm, 100 ohm ऐसे आ जाए. At least it should be 1K. More than 1K आए तो there is no issue. वैसे भी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज कर रहे हो तो उसका इनपुट इम्पीडेंस वगैरह काफी हाई रहता है. So will you be able to design it? Yes, sir. यही न्यूमेरिकल यही रहने वाले हैं. ठीक है, यही न्यूमेरिकल रहने वाले हैं. सो लेट अस गो टू आवर सेकंड ऑर्डर. एज यूजुअल इसका डेरिवेशन वगैरह कुछ है नहीं आपको.
थोड़ा सा इसके बारे में लिख देते हैं। सेम वे उसी तरीके से अगर इसको एनालाइज किया तो द सेम वेनर आई कैन सी सम सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस यूज ऑफ एडिशनल आरसी नेटवर्क 40 डेसिबल पर डिकेड रोल ऑफ रेट और गेन ऑफ फिल्टर इज सेट बाय R1 and RF. So this control is there with us and lower cutoff frequency कैसे निकालेंगे? तो सेम फार्मूला उसमें जैसा था वैसे ही 2 पाई और 2 रजिस्टर और 2 कैपेसिटर है तो स्क्वायर रूट में आ जाता है। दोनों वैल्यू क्या है तो R2 R3 C2 C3। अगर ये R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R रहा और C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C रहा तो दिस सिंपली FL विल बी कन्वर्टेड टू 1/2 पाई RC। नॉर्मली डिजाइन करते वक्त हम ऐसे डिजाइन करते हैं ताकि दोनों वैल्यू सेम लेने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, सिंपल हो जाता है फार्मूला। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज गेन व्हाट इट विल बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज गेन विल बी U by V। सेम वे से फार्मूला यहाँ आ जाएगा AF अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस FL बाई F। यहाँ पे FL बाई F ये पावर पे 4, ये फार्मूले में थिंग याद रखो। So this is what is about second order high pass filter. Is it okay? Yes, sir. Now, although it completes, I don't know why they have not included band pass filter and band reject filter, but I suppose some idea I should give it because you are the student of communication और band pass filter ये commonly use आता है। If you can recall, आप कोई भी band pass filter कभी आया है क्या आपको टर्म कम्युनिकेशन में? कभी टर्म आया है क्या बैंड पास फिल्टर? नहीं आया। फिल्टर ये पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पास करता है, ठीक है। तो इसको एक्चुअली 2 वे में क्लासिफाई करते हैं, एक नैरो बैंड पास फिल्टर और एक वाइड बैंड पास फिल्टर। नैरो यानी जिसका क्वालिटी फैक्टर मोर देन 10 रहता है और वाइड यानी जिसका क्वालिटी फैक्टर लेस देन 10 रहता है। एक्चुअली ये उल्टा क्यों है कि क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। तो वाइड बैंड पास फिल्टर मतलब उसका बैंडविड्थ ज्यादा रहेगा, जैसे इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस किस तरीके से रहेगा कि बहुत लंबी रेंज की फ्रीक्वेंसी हम पास कर रहे हैं और उसके बाकी के हम लोग रिजेक्ट कर रहे थे, ये पास बैंड है। नैरो बैंड में ऐसा हो सकता है कि पर्टिकुलर एक छोटी सी फ्रीक्वेंसी हम पास करना चाह रहे हैं, ये वाली। आपको याद दिला दूं, आप जब रेडियो ट्यून करते थे पुराने जमाने में कि नागपुर स्टेशन या मुंबई स्टेशन में, तो जब घुमाते थे ना आप लोग, नॉब घुमाते थे क्या पुराने जमाने में? कभी वो रेडियो यूज किया है? पुराने रेडियो यूज किए कि नहीं? यस सर। ट्रांजिस्टर? हाँ ट्रांजिस्टर। देखो आप अब देखो, आप जैसे लोग भी अब उसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं, पुराने जमाने में ट्रांजिस्टर बोलते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को मालूम होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर उसमें का एक कंपोनेंट है। तो उस पूरे रेडियो को ट्रांजिस्टर बोलना जरा अजब हो जाता है। लेकिन क्या हुआ, इसके पहले हम लोग वॉल्व्स यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे। अगर आपको किसी को पुराने टीवी रेडियो याद आ रहे होंगे तो बहुत बड़े आते थे और उसके पीछे से अगर देखे तो कुछ ग्रीन लाइट वगैरह ऐसी बड़ी हेवी लाइट दिखती थी। अगर किसी ने पुराना रेडियो देखा होगा तो वो उस समय वॉल्व्स यूज करते थे, समझे। और बाद में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आ गए जो कि ट्रांजिस्टर, तो उसने एकदम क्रांति ला दिया, छोटा हो गया वो, बहुत छोटा ट्रांजिस्टर, यहाँ तक कि वॉकमैन आ गया छोटा सा। अब तो आपके मोबाइल में आ जाता है। तो वो बहुत बड़ी क्रांति थी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आने के कारण। तो उस समय उसको ट्रांजिस्टर, तो हम लोग जब वो वॉल्यूम जैसा बटन को हम चेंज करते हैं, कोई पर्टिकुलर स्टेशन चुनते हैं, इसका मतलब क्या करते हैं, हम उसको ट्यून कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये जो बैंड पास फिल्टर का ये जो एनवेलप है ना, ये एनवेलप आप धीरे धीरे घुमा रहे हैं। ये वाली रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी सपोज ये नागपुर है, इसको थोड़ा थोड़ा और ट्यून कर रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। ये वाली फ्रीक्वेंसी हो सकती है बॉम्बे है और आगे बढ़ा रहे, तो ये एनवेलप चेंज हो रहा है। मतलब ये वाली रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी और ये सब रिजेक्ट हो रही। तो नागपुर यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, बॉम्बे यहाँ पे मिल गया। इसलिए अगर आपको पुराने दिनों के अगर कुछ ट्रांजिस्टर या रेडियो याद आ रहे होंगे तो उसमें कभी कभी दूसरा सिग्नल उसमें ऐड हो जाता था, दो आवाजें आती थी। पास के जो स्टेशन थे ना उसका भी आवाज ऐड हो जाता था। थोड़ा बहुत मैं आपको फील लाने के लिए वो बता रहा हूँ। तो अल्टीमेटली इफ यू आर ट्यूनिंग मीन्स व्हाट, इट इज अ गैंग्ड कैपेसिटर बोलते थे हम, गैंग्ड कैपेसिटर। आपने वो पढ़ा है क्या, रिसीवर, रेडियो रिसीवर, कौन सा, सुपर हेटेरोडाइन? यस, सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर पढ़ा है क्या? कम्युनिकेशन में आया होगा ना, उसमें गैंग कैपेसिटर रहता है ना। तो वो जो ट्यून करते हैं मतलब क्या होता है, आप कैपेसिटर उसका चेंज कर रहे हैं। कैपेसिटेंस चेंज होने से आपको मालूम है ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो ये बैंड पास फिल्टर का एनवेलप घूम रहा है, तो कभी ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है, कभी ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलती है, कभी ये। तो जिसमें आपको फाइनली आवाज आता है उसमें आप रोक देते हैं।
तो अब जरा अपनी क्वांटिटी पर आते हैं। ये क्वालिटी फैक्टर इज नथिंग बट सेंटर फ्रीक्वेंसी एफओ बाई बैंडविड्थ। ये सेंटर फ्रीक्वेंसी, ये जो पीक वैल्यू है इसको यहाँ पे बनाता हूँ। अगर ये है तो इसको सेंटर फ्रीक्वेंसी या एफओ बोलेंगे, जो कि ज्योमेट्रिकल मीन होता है। मतलब अगर ये एफएच है, ये एफएल है, तो एफओ जो होता है ये स्क्वायर रूट ऑफ एफएच इंटू एफएल। एफएच क्या है? अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एफएल क्या है? लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और एफओ क्या है? सेंटर फ्रीक्वेंसी। अब मैं ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको वाइड बैंड पास फिल्टर का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आपको यानी इजीली समझ में आ जाएगा। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा बरा, ये बैंड पास फिल्टर जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अब मुझे ऐसे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चाहिए, वाइड बैंड चाहिए, तो क्या आइडिया लगा सकते हैं? अब जरा बता सकते। लो पास और हाई पास फिल्टर मिला के करना है मुझे। एक सोचते हैं पहले, ये मेरा सिग्नल है जो कि पूरे फ्रीक्वेंसीज हैं, इसको अगर मैंने हाई पास फिल्टर से भेज दिया तो मुझे इस तरीके का रिस्पांस मिल गया, ठीक है। और इसको मैंने लो पास फिल्टर से भेजा जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कुछ यहाँ पे है, सपोज यहाँ पे है, तो मुझे क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा आइडियली, ये बैंड मिल जाएगा ना। ये एफएच था, सॉरी ये एफएल था। यानी क्या कर रहा हूं मैं, आप समझने की कोशिश करो क्या बोलना चाह रहा हूं। ऐसे मान के चलो कि ये है 1 किलोहर्ट्ज और ये है 100 किलोहर्ट्ज। सो व्हाट आई एम सेइंग, फर्स्ट यू पास दिस इनपुट टू ए हाई पास फिल्टर with low cutoff frequency FL equals to 1 किलोहर्ट्ज। अब क्या होगा यहाँ पे बताओ बड़े, इसका आउटपुट क्या आएगा? इस तरीके से आएगा, पूरी फ्रीक्वेंसी पास होंगी 1 किलोहर्ट्ज के ऊपर की, 1 किलोहर्ट्ज के ऊपर की, बराबर है। अगर मैंने हाई पास फिल्टर लगाया जिसमें कि 1 किलोहर्ट्ज का कट ऑफ है, तो 1 किलोहर्ट्ज के अबाउ की सब फ्रीक्वेंसी पास हो जाएंगे ना। यस सर। और यही वाला जो आउटपुट आ रहा है, ये मैं अगर अब लो पास फिल्टर को दे रहा हूं और जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मैं मेंशन करता हूं, कितना रखा था? 100 किलोहर्ट्ज। इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 किलोहर्ट्ज करता हूं, तो क्या करेगा ये? इसके पहले के 100 किलोहर्ट्ज पूरे पास करेगा और 100 किलोहर्ट्ज के अबाउ रिजेक्ट कर देगा। तो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आपको कैसे दिखेगा? अब देखो 1 किलोहर्ट्ज की पहले नीचे की पूरी फ्रीक्वेंसी तो पहले रिजेक्ट हो गई, अब बचा क्या है? तो ये 1 किलोहर्ट्ज और इधर आप कितना ले जा रहे हैं? 100 किलोहर्ट्ज, और उसके अबाव की तो पूरी स्टॉप बैंड हो जा रहा है, रिजेक्ट हो जा रहा है। तो आपका ये पास बैंड अगर आ गया तो इज इट नॉट ए बैंड पास फिल्टर? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग। फर्स्ट वी आर पासिंग द इनपुट सिग्नल, सो सच कैस्केडेड सर्किट विल बी देयर। हाई पास फिल्टर, अब मैं सर्किट डायग्राम बनाता नहीं, सिंपल यहाँ पे एक हाई पास फिल्टर और फिर इसके बाद लो पास फिल्टर, तो ये हो जाता है टोटली वाइड बैंड पास फिल्टर। तो ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए आपको जानबूझ के किया। इसके बाद रहता है नैरो बैंड पास फिल्टर, नैरो बैंड पास बैंड रिजेक्ट फिल्टर, ठीक है। सो एज वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द एंड, लास्ट में एक बताना चाहूंगा कि ऑल पास फिल्टर भी रहता है। ये मैंने बताया था कि आपको ऑल पास फिल्टर भी रहता है, जो कि आपको कोर्स में नहीं है, पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसका सिंपल सर्किटरी है, लेकिन उसको क्यों ऑल पास फिल्टर बोलते हैं। ये सपोज R1 है, ये RF है, और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ सिंपल सा R और ये जो C है, ठीक है, ये है R1, ये RF इक्वल टू R1 वैल्यू लेना है, और ये R और C वैल्यू है। ये एज गुड एज आपको लगेगा कि लो पास फिल्टर है, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड रहता था ना, इस ग्राउंड को न करते हुए इन दोनों को जोड़ दिया और यहाँ से इनपुट दे दिया, तो यहाँ जो आउटपुट मिलता है ना, वो हम जब एनालाइज करते हैं तो हमको VO बाई Vin कुछ इस तरीके से मिलता है, 1 माइनस J2 पाई FRC अपॉन 1 प्लस J2 पाई FRC। इससे क्या पता चलता है? अगर इसका मैंने मैग्नीट्यूड निकाला तो क्या आएगा? कोई बता सकता है क्या इसका मैग्नीट्यूड? ऊपर है 1 माइनस J2 पाई FRC, नीचे है 1 प्लस J2 पाई FRC। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। तो ये इस तरीके से हो गया कि ये सर्किट देखो कितना सा सिंपल है, लेकिन जो इनपुट है वही आउटपुट आता है, जो इनपुट है वही आउटपुट आता है। यानी आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, मतलब हर फ्रीक्वेंसी वो पास कर रहा है, कोई भी फ्रीक्वेंसी रहो, ओके। सो आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, बट फेज शिफ्ट विल बी डिफरेंस। फेज शिफ्ट विल बी डिफरेंस कि ऊपर में आ रहा है -2 पाई RC
माइनस टेन इनवर्स ऑफ 2 पाई FRC। तो इससे ये बन जाता है माइनस 2 10 इनवर्स 2 पाई FRC। तो फेज शिफ्ट वी कैन चेंज बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ RC। तो हमको डिले कई बार यूज लगता है कि इतना इतना फेज शिफ्ट का डिले ही है। इफ आई वांट अ फेज शिफ्ट ऑफ 30 डिग्री, so I can set the value. If I want a phase shift of 45 degrees, so I can set the value. So that is what is this one.